আমরা এক্সারসাইজ 2 তে আছি। আমার মনে হয় এটাতে দুইটা এক্সারসাইজ করে উইল মুভ অন। আমি এটা জেরেক্স এর লেগে দিছি নেক্সট কোন সেকশন দি। If one of the lines of the pair of straight line given by these bisects the angle between the coordinate axes, then k is equal to. এটার মধ্যে দুইটা লাইন আছে কইছে। এর মধ্যে কইছে one of the lines, এই যে পেয়ার অফ লাইনে একটা লাইন আছে যেটা কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস রে বাইসেক্ট করে। কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিস রে বাইসেক্ট করে লাইন কোনটা আছে? হয় y = x লাইনটা, আর না হয় y - x টা। মানে m = হয় +1 হইব নাইলে -1 হইব। একটা m থাকবো যেটা এটার মধ্যে +1 বা -1 হইবেই হইব, ঠিক না? এটা যদি আমি m এ ট্রান্সফার করি তাহলে কি হয়ে যায়? আমরা দেখছিলাম ওদিনকে ky² + 6xy + 4x²। এটা আর এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? এটা অরিজিন দিয়ে জানে वाला লাইন, মানে y = mx রিপ্রেজেন্ট করে, ঠিক না? তাহলে y/x এর জায়গায় আমি my দিতে পারি। তাহলে এটা কি হয়ে জায়গা জানি? km² + 6m + 4 = 0। এখন +1 বা -1 যে কোনো একটা পয়েন্ট এটা স্যাটিসফাই করতে লাগবে, কারণ m এর একটা রুটস আছে। আমি যদি +1 বয় তাহলে কি হয়ে যাবে এটা? then it will be k + 6 বলো k = -10 হবে। আর নাহলে যদি -1 বয় তাহলে এটা +k - 6 + 4 = 0, then this k will be equal to 2। তাহলে দুইটা আছে কি পসিবল, ঠিক না? k = -10 and 2, -10 and 2। বুঝছ না? ডিরেক্টলি দেখো একটা। নেক্সট কি কইছে আমাদের? If one angular bisector of this one is at, then the equation of the other angular bisector, একটা angular bisector ইকুয়েশন দিয়ে দিছি এটা, আরেকটা angular bisector করতে হবে। angular bisector এর নরমাল ফর্মুলা কি আছিল আমার? বাট ওইটা আসলে কি, তা ধরো ax² + 2hxy + by²। ওইটার angular bisector এর ইকুয়েশন আছিল কি আছিল আমার? x² - y² বাই জানি a² - b² xy/a, এমন টাইপের কিছু আসলে দেওয়া আছে। কিতা আসলে আমার কাছে নাই এনে? হ্যাঁ, তো x²/a² মাইনাস ডিভাইড বাই a - b = xy/h, ঠিক নি? = a - b/xy। বাট এটা কিসের লাগা? এটা হইছে তোমার যদি এইরকম হয়, এখানে তো এটা এমন না, এর একটা মধ্যে সব আছে, ঠিক আছে নি? এটা শুধু অরিজিন জানে वाला লাইন না, এটার মধ্যে যে কোনো লাইন হতে পারে, ঠিক নি? মানে বাইরের লাইনও হতে পারে, ঠিক আছে নি? কারণ এটা দেখুন একটা লাইন অরিজিনটা যাইতেছে না, এটা তো অন্য লাইন। তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমরা কি করি? আমি ইকুয়েশনটা লিখি। ইকুয়েশনটা আমার কি দিয়েছে? a × x + 1 হোল স্কয়ার প্লাস 2h x + 1 আর y - 3 প্লাস b × y - 3 হোল স্কয়ার = 0। ঠিক আছে? এটা দিছে আমার। আচ্ছা, এটা দেখে আমি ধরো এটা খুললে তো এমন টাইপের একটা স্ট্রাকচার বানানো যাবে, ঠিক নি? বাট এটা আমি বানাইতে চাইতেছি না। আমি এর থেকে কিছু একটা ইনফরমেশন, এটা এমন দেওয়ার কারণ কি আমি এটা চিন্তা করতেছি। এটা হে এমন দিছে কে? কিছু তো একটা চাইতেছে এই কোণের লেগে। x + h y - 3 এটা দেখো, এটার মধ্যে কিন্তু x এর জায়গায় x + 1 বইছে, y এর জায়গায় y - 3 বইছে, বাকি নালে সেম স্ট্রাকচার। তার মানে এটা শিফট হয়ে গেছে এটা অ্যাকচুয়ালি, ঠিক না? আমি যদি এখানে x এর জায়গায় -1 বয় আর y এর জায়গায় 3 বয়, তাহলে ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করে। স্যাটিসফাই করে। তার মানে এই যে দুটোটা লাইন আছে, এটা কোন পয়েন্টটা যাইতেছে? -1, 3, ঠিক আছে? এতে এর লেগে এটা এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে स्ट्रक्चरটা, ठीक है? এতে আমি কি বুঝতেছি? दोनों -1, 3 से जा रहा है। अब इनमें से एक बाइसेक्टर দেওয়া হয়, মনে করি এটা দেওয়া আছে। আর একটা বাইসেক্টর দেওয়া থাকলে আরেকটা বাইসেক্টর কি হয়? এটা সবসময় যে কোনো অ্যাঙ্গেল, মনে করে অ্যাঙ্গেল আছে, এটা যদি এই বাইসেক্টরটা হয় আর এক্সটার্নাল, এটা ইন্টারনাল বাইসেক্টর আর একটা এক্সটার্নাল বাইসেক্টর, এটা এই দুটো অ্যাঙ্গেল কি হয়? দিস অ্যাঙ্গেল ইজ অলওয়েজ 90 ডিগ্রি। ইন্টারনাল বাইসেক্টর আর এক্সটার্নাল বাইসেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত হয়?
90 তো আরেকটা বাইসেক্টর এই যেটা বার করতে কইছে এটা তোমার যে গিভেন বাইসেক্টরটা আছে ওইটা পারপেন্ডিকুলার গিভেন বাইসেক্টর আমার এখানে কি আছে 2x minus 3y plus 11 equal to 0 इसका स्लोप कितना हो जाएगा 2/3 ठीक है इसका स्लोप अगर 2/3 हो जाएगा मैं लिखता सी ना आगे ठीक है 2/3x plus 11/3 এর এটার স্লোপ কত হইতেছে আমার 2/3 তাহলে আমি যে লাইনটা বার করতে যাইতেছি ওটার স্লোপ কত হইব -3/2 কারণ দুইটা পারপেন্ডিকুলার লাইন আর ওই লাইনটাও -1,3 দিয়ে যেতেছে তো -1,3 দিয়ে যাইবো আর এটা হচ্ছে পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে পয়েন্ট এই পয়েন্ট দিয়ে যাইবো আর এটা হচ্ছে স্লোপ তাহলে লাগাইলো y - y1 = therefore ইকুয়েশন কত হয়ে যাবে তুমি পয়েন্টও লেখোই না স্লোপও জানো পয়েন্টও জানো ফাইন্ড দোজ ইকুয়েশন आ जाएगा y minus y1 is equal to m x minus x1 2y minus 6 is equal to minus 3x minus 3 so 3x plus 2y is equal to 3 কোনটা এটা আছে না অপশন লেকচার শিখে দেখতেছ না এটা কি হইছে অপশন আছে কিন্তু 2 এর a দেওয়া আর আমরা এসে কোনটা এই কেমনে হবে তো এটার লগে পারপেন্ডিকুলার ইন এই গলত হবে দাঁড়া আমারটা দেখি এটার লগে পারপেন্ডিকুলার হইতে হবে না আমারটা তো আমি ঠিক করছি অপশন ডি হতে লাগবে আদার অ্যাঙ্গুলার বাইসেক্টর না একটা অ্যাঙ্গুলার বাইসেক্টর এমন হলে আদার এই দুটো সবসময় 90 ডিগ্রি ভেক্টরটা লাগে তো এটা তো এনে বল ওয়ান অ্যাঙ্গুলার বাইসেক্টর শুড বি ইকুয়াল টু পারপেন্ডিকুলার টু আদার অ্যাঙ্গুলার বাইসেক্টর ঠিক না কারণ এটি একটা ইন্টারনাল একটা এক্সটার্নাল এটা তো বুঝতেছো যে কোনো দুইটা লাইন লইলা ইফ ইউ টেক এনি টু লাইন এটা তো বেসিক কনসেপ্টে আয় করে এই বাইসেক্টরটা আর এই বাইসেক্টরটা এটা সবসময় 90 ডিগ্রিতে থাকবে এটা ইন্টারনাল হইলে এক্সটার্নাল বাইসেক্টর ঠিক আছে না প্রুফও করুন দেয় এটা প্লাস এটা টোটাল মানে θ/2 এটা/2 যোগ করে 90 হইব तो बेसिक प्रूफ ठीक है आगे बढ़े इसको करेक्ट कर लो कौन सा बेटर ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉलम में कैसे 2 है ना এটা তো नंबर 3 3 नंबर কি কইছো তোমারে the lines this are equally inclined to the line the lines এই লাইনসটা equally inclined কোন লাইনের সাথে equally inclined আচ্ছা equally inclined মানে কি কর ধরো কোন লাইনস equally inclined to কোন লাইনের লগে equally inclined হইবো অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টরের লগে যেমন অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টরের লগে equally inclined বা আরেকটা অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর আছে এটার লগে এটা equally inclined বুঝতেছো তো এটা তার মানে এটার অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টরের কথাই কইতেছে এই কার লগে equally inclined অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টরের লগে দ্যাট মিন্স ইট ইজ আছে আর এটা তো স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন না এটা তো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলাটা ঠিক নেই 33xy minus 20y square এটা কি ফর্মুলা ছিল আমি জানি y square by a minus b is equal to h এটা তো ab কি তা a 36 b minus 20 তাহলে এনে কি হয়ে যাবে x square by y square করো এনে h হয়ে যাবে -33/2 এমন টাইপের কিছু নেই ঠিক আছে না তার মানে কি হইতেছে আমার কিন্তু ফ্যাক্টর ইয়ে কাটাকাটিতে যাইতেছে আমি সে কাটাকাটি যাইব 56 দুগুণ 112
फैक्टराइज शायद हो जाएगा क्योंकि 3 इंटू 11 और 3 इंटू 11 121 और 9 112 ठीक है ना, फैक्टराइज हो जाएगा तो 33x² प्लस 121xy माइनस 9xy इज इक्वल टू माइनस 33y² इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11x कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 11y और यहाँ से 3y कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 11 फैक्टराइज कर लो आ जाएगा। So you'll get one is 3x plus 11y equal to 0 और एक है 11x minus 3y equal to 0। So इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है क्योंकि दोनों बाइसेक्टर है और दोनों के साथ इक्विवेलेंट है। आई थिंक ऑप्शंस में थोड़ा करेक्ट कर तो पहला वाला ऑप्शन में जो xy दिया है उसमें से x हटा दो। पहला दो ऑप्शन में 11xy रिमूव द x सिर्फ y हो तो उस हिसाब से आंसर कौन सा बनेगा। 5 तो मेरा एक में भी नहीं आया। अच्छा हाँ जरूरी नहीं है कि इसके साथ हो, इसका कुछ जैसे मैंने लास्ट डे भी था इसका, ठीक है इसके साथ तो होगा लेकिन इसका कुछ पैरेलल के साथ भी वो सेम एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो इसका किसी का पैरेलल होने से भी हो जाएगा, जैसे 11 प्लस 3x प्लस 11y तो ये हो सकता है, पहला वाला ही हो सकता है क्योंकि इट इज पैरेलल टू दिस वन 3x प्लस 11 हो तो इसका पैरेलल होने से भी चलेगा। इसका पैरेलल किसी लाइन के साथ भी हो सेम एंगल रहेगा, सेम इसका भी पैरेलल, बट इसका ऑप्शन में नहीं है, इसका ऑप्शन है सो यू गो विद दिस। एंगल बाइसेक्टर के साथ तो होगा ही, उसका पैरेलल जो भी लाइन है सबके साथ उसका एंगल सेम होगा। नंबर 4 the slope of the angular bisectors of the pair of lines, ये जो pair of line है इसका angular bisector of the pair of lines, इसका slope क्या होना चाहिए angular bisector, इसका है 11x plus by whole square is equal to c into bx minus ay whole square, ax plus by whole square is equal to c into bx minus ay whole square, इसका c greater than 0 है। स्लोप ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स ओके तो अपने को तो पता है अगर हाँ जैसे अगर स्टैंडर्ड वाला होता, जैसे स्टैंडर्ड वाला होता क्या था, स्टैंडर्ड वाला ax² प्लस 2xy प्लस by² का डायरेक्ट पता है अपने को x² by y², लेकिन ये वो स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है इसका पैरेलल ही है, ठीक है ना, इधर पैरेलल है तो इधर हम किसी होमोजेनियस पार्ट का सेम था ले तो सेम ही, तो इसका होमोजेनियस पार्ट निकाल लो, उसमें से जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा और उसका जो शिफ्ट करने के बाद एंगल बाइसेक्टर भी शिफ्ट हो जाएगा, तो स्लोप तो सेम जाएगा, ठीक है, स्लोप विल बी सेम बिकॉज इट इज द पैरेलल शिफ्टिंग ओनली। तो अगर पेयर शिफ्ट हो रहा है तो उसका बाइसेक्टर भी शिफ्ट होगा लेकिन स्लोप तो सेम ही रहेगा। तो इसका होमोजेनियस पार्ट पहले निकाल लो, इसका होमोजेनियस पार्ट क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2abxy, उधर क्या बनेगा c इंटू b² प्लस c इंटू a² माइनस 2abcxy, इस टाइप का कुछ बन रहा है। तो अगर तुम आ रही है तो होमोजेनियस है, इसमें तो शिफ्टिंग की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा। x² कॉमन ले लिया तो a² माइनस cb² और प्लस 2xy कॉमन ले लिया ab माइनस abc प्लस y² कॉमन ले लिया b² माइनस cb², ठीक है। तो क्या होता है इसका बाइसेक्टर, देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर्स आर, फॉर्मूला जो है लगा x² माइनस y² बाई a माइनस b, a है अपना a² माइनस cb² माइनस b² प्लस cb² इज इक्वल टू xy बाई h कितना है अपना ab माइनस abc।
ठीक है, इसका कुछ तो झोल हो रहा है इधर, सब सी बी स्क्वायर कैसे लिख दिया? अरे वाई स्क्वायर मतलब सी ए स्क्वायर होना चाहिए ना ये, क्योंकि एक इधर आ गया एक उधर से आ गया, तब नहीं होगा, सिमेट्री तो आना चाहिए। अब ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से अगर मैं, इन दोनों में से नहीं, इन दोनों में से, हाँ इसका और इसका, ये बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, और उधर में से सी कॉमन ले, ए कॉमन प्लस सी कॉमन लिया, फिर से बना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इधर में भी क्या कॉमन जा रहा है, ए भी कॉमन जा रहा है, 1 माइनस सी, और यहाँ बन रहा है 1 प्लस सी। मैंने कुछ सही किया ना कुछ गलत किया? काटता ना किच्छु काटले वालों आसिलो ना, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस सी एक्स वाई, और ये बन रहा है ए बी इंटू 1 माइनस सी, 1 प्लस सी। कुछ इस टाइप के बन रहा है ना, देखो কিছু কাটছে না, ভুল টুল করছে এমন না, কিছু তো একটা আইতে লাগবে প্লাস টু বি। এইচ वाला यहाँ प्लस होना चाहिए। देखो बताओ क्या करता है, नहीं बताता। इसमें से कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा? ए प्लस सी, ए प्लस। अब थोड़ा छोटा लग रहा है, नहीं तो ये ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, ठीक है ना। नाउ इट कैन बी डन। अभी क्या आ रहा है, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। ये बन जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई माइनस ए बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो तुम आराम से फैक्टराइज हो रहा है, क्योंकि आपने को फैक्टराइज ही करना है, ठीक है ना। 2 लाइन जानना है, उसका स्लोप जानना है, तो इसका फैक्टराइज करो रे बेटा। फैक्टराइज करके 2 फैक्टर निकालो तो 2 इक्वेशन बनेगा और 2 स्लोप बन जाएगा। एग्जाम आंसर में क्या 2 स्लोप ना सिंगल स्लोप? 2 स्लोप, दोनों आंसर हो जाएगा। इसमें से 2 आ जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। करो तुम, इसको सॉल्व किया तो 2 इक्वेशन, एक बना क्या, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, और दूसरा वाला ఎంత y is equal to mx, तो minus a by b, और ఎంత y is equal to b by a. So minus a by b and b by a. That means which one? Minus a by b and option A. The first option is safe. इसमें से कौन सा वाला? कौन सी करता? 5 नंबर था ना? ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है बेटा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों लाइन का। तो स्लोप मेरे को कहाँ से मिलता है, इन दोनों के बीच से, ठीक है। और आपने को पता भी है पैरेलल लाइन होने के लिए क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर इक्वल टू ab, वो जो एंगल का फॉर्मूला था, एंगल पे ना नॉर्मल एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू क्या था ना, रूट 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b ना, मॉड है, ठीक है। तो अगर जीरो पैरेलल मतलब क्या है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो h स्क्वायर इक्वल टू ab होना चाहिए, ये तो पहला कंडीशन है अपना। तो ये h स्क्वायर इक्वल टू ab तो यहाँ से हो गया। फिर और कंडीशन क्या है, पहले तो फिर तो लाइन दिखाना पड़ेगा, इट शुड रिप्रेजेंट ए लाइन, तो इसका डेल्टा भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइन तो होना ही पड़ेगा पहले, नहीं तो आगे कैसे पड़ेगा, h स्क्वायर इक्वल टू ab हुआ लेकिन लाइन ही नहीं बना, तब तो होगा नहीं। तो उसके लिए क्या था, अगर वो ट्रायंगल खोलोगे तो डायरेक्ट याद हो जाता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर ag स्क्वायर ना, क्या
আনলে ট্রায়াঙ্গেলটা লিখতে হবে এটা আসলে এ এইচ জি देन एच बी एफ जी एफ सी इसको खोलोगे तो आ जाएगा ठीक है ना ए के साथ ए एफ स्क्वायर और एच ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर आटा कितना आसिलो आसिलो नहीं कितना आसिलो पूराटा नाले डेल्टाटा खुलते হয় डेल्टाटा খুললো আর নালে ডাইরেক্ট আমরা শিখ গেল জমিনতে খুলতে আর আইজে কে দিয়া আর নালে ডাইরেক্ট শিখলো হয়ে যাবে এটা হ্যাঁ বাস এদুরে डायरेक्ट शिखले डेट है abc plus 2fgs minus af square minus bg square minus ch square that should be equal to 0 अब इसमें अपने को एक कंडीशन पता है कि ab इक्वल टू h स्क्वायर है तो ab और h स्क्वायर अगर इसके जगह में हम लिख सकते हैं h स्क्वायर अगर लिख दिया तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया ঠিক আছে দুটো সেম কেটে তাহলে আমার কিটা আছে 2fgh minus af square minus bg square equal to 0 और अपने को चाहिए क्या f by g चाहिए तो डिवाइडेड बाय g स्क्वायर पूरा को g स्क्वायर से डिवाइड करो देन इट विल बी 2f by g into h minus a f by g whole square minus b equal to 0 और f by g को लेट मी टेक x ले लेता हूँ f by g को या फिर k ले लेता हूँ ठीक है ना कुछ k ले लिया तो ये क्या बन जा रहा है 2kh माइनस ए के स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0 अपने को क्या चाहिए था के चाहिए ना तो इसको थोड़ा सुंदर से लिखते हैं ए के स्क्वायर माइनस 2kh प्लस बी इक्वल टू 0 अच्छा तो यहाँ से क्या क्या बनेगा व्हाट विल बी के इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 4h स्क्वायर माइनस 4ab बाई 2a अब देखो ये फिर से 0 हो गया क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू ab होता है तब क्या बन गया ये बन गया h बाई a तो f बाई जी इक्वल टू h बाई a ये मेरा हो गया आंसर व्हाट इज h अच्छा फिर h की जगह में फिर हमने लिख दिया रूट ए बी तो क्योंकि आंसर ए बी में है तो रूट बी बाई ए इट शुड बी रूट बी बाई ए ब्रैकेट दिया ये गेट जीआईएफ नहीं है नॉर्मल ब्रैकेट है जीआईएफ देने से दे मेंशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पेयर ऑफ लाइन एक तब ये बोला प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम माइनस जे माइनस ए ये है तुम्हारा पॉइंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है f माइनस जी अब इसमें से तुम इसके ऊपर परपेंडिकुलर फेंक दो इसके ऊपर परपेंडिकुलर फेंक दो p1 p2 दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तुमको बोला है कि p1 p2 क्या होगा you have to find p1 p2 and that answer has to be in terms of fgh ओके लाइन जो दिया हुआ है पेयर ऑफ लाइन अपने को hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c इज इक्वल टू 0 लाइन थोड़ा इजी लग रहा है क्योंकि छोटा मोटा है ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है अब एक चीज ध्यान दो बेटा अगर इस लाइन का इक्वेशन मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 होता और इस लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता क्या होता 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 तो इसको 1 लिया इसको 2 लिया ये जो तुमको दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट 1 into 2 ये मानते हो कि नहीं
क्योंकि पेयर ऑफ लाइन क्या है, जो लाइन के इक्वेशन दो को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देता है। तो P1 जो बनेगा अपना, P1 क्या बनेगा, P1 क्या होता है, हम लोग ने क्या पढ़ा था, अगर ये x1 ये मान लो x1 y1 पॉइंट है फॉर रेफरेंस, तो ये क्या हो गया a1 x1 पावर ऑफ पॉइंट b1 y1 प्लस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट, तो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। अभी P2 भी क्या होगा, a2 x1 b2 y1 प्लस c2 बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। तो आगे P1 P2 चाहिए अपने को, तो क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, और ऊपर प्रोडक्ट होने से क्या बन रहा है, ये a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाई a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। इस टाइप का कुछ बन रहा है। अच्छा, ऊपर वाला चीज को थोड़ा गौर फरमाइए आप लोग, ये जो चीज है ये एक्चुअली क्या, दोनों का जो प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट कहाँ पर है, ये है ना प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में उसने क्या किया, x1 y1 का वैल्यू डाल दिया, ठीक है ना, तो हम इसमें डाल देते x1 y1 क्योंकि अपने पास तो दे ही दिया। और एक चीज को देखो, ये तो हो गया वो, अच्छा ऊपर वाला पोर्शन का हो गया, और एक चीज देखो नीचे वाला जो पोर्शन आ रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये दोनों को थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। जो अपना a1, तुम समझ सकते हो, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा, तुम याद देखो a1x और a2x, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा, लिख के दिखाओ, a1x b1y c1 मल्टीप्लाइड बाई a2x b2y c2। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, a1 a2 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस x से कितना बनेगा, x वाला कितना चेक करें, या फिर xy वाला लिख लेते हैं, पहले xy वाला लिख लेते हैं, xy कितना है, xy ये और ये, फिर ये और ये, ठीक है ना, तो कितना हो गया a1 b2 प्लस b1 a2 xy, फिर खाली x वाला कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, एक ये वाला एक ये वाला, x के साथ आ जाएगा a1 c2 प्लस c1 a2, और खाली y के साथ कौन आएगा, b1 c2 और फिर ये वाला c1 b2, और एक खाली बचेगा c1 c2, ये है। थोड़ा कंपेयर करके देखो, अपना a1 a2 b1 b2 क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब नीचे देखो, यहाँ पर तुम्हें जो दिया हुआ है उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नहीं है, देयर इज नो x स्क्वायर y स्क्वायर कोफिशिएंट, तो a1 स्क्वायर ये भी 0 है, b1 स्क्वायर ये भी 0 है, और इसमें देखो a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, ये कहाँ से है, अपने को क्यों एक भी स्क्वायर नहीं है, अच्छा इसको हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि स्क्वायर नहीं है अपने पास, सिर्फ एक है ये वाला, तो इसको लेट अस राइट इट a1 b2 प्लस b1 a2 का होल स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 b1 b2। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट है a1 b2 b1 a2 xy का जो कोफिशिएंट है, और ऊपर में मैंने क्या बोला था, ऊपर में हमको क्या डालना है, उसमें से वैल्यू डालना है ये वाला, ठीक है, तो इसमें क्या डालेंगे, जब वैल्यू डालेगा तो इसमें xy क्या x1 y1 कितना, अपना f माइनस जी इसमें डालना है, तो h f माइनस जी प्लस g f
प्लस एफ माइनस जी प्लस सी। ठीक है, अब ऊपर में क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ऊपर में हो गया माइनस एफ जी एच, ऊपर में बन जाएगा एफ जी एच प्लस सी, और नीचे ये क्या बन रहा है, ये तो जीरो हो गया, a1 a2 b1 b2 मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, h है, ये बन जाएगा h स्क्वायर माइनस a1 a2 b1 b2 जीरो है जीरो। ये क्या बन रहा है, एक्चुअली डिस्टेंस है दोनों का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये तो नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है ना, सो दिस विल नॉट बी नेगेटिव, तो इस टाइप का कुछ बन रहा है c माइनस एफ जी एच डिवाइडेड बाई एच, इसका मॉड कुछ है ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया, इजी था, थोड़ा समझने से अच्छा, ये तो उसी से आ रहा है, ये तो उसी से बन रहा है देखने से, नाउ इट इज अंडरस्टैंडेबल। এটা এটা ও তো এটার মধ্যে পয়েন্ট, এটা এই দুটো একটা গেছে এটা তো মড, मॉड देख एमने रख लो इले मॉड तो तुम सी लिखो सी माइनस लिखो एफ जी दोनों सेम ही है, ये और ये सेम बात। ठीक है, आगे बढ़े, फिर कौन सा है, सेवन क्या बोला है, The pair of lines this and this intersect on y axis। अच्छा, ये समझना पड़ेगा, y axis में इंटरसेक्ट है, ये स्पेशल केस हो गया क्योंकि y axis में इसको इंटरसेक्ट करना। ठीक है, ठीक है, सही बात। अगर वो एक्सिस में इंटरसेक्ट करना है तो कंडीशन वो पूछ रहा है कुछ, ठीक है ना, देयर आर सम कंडीशंस दैट वी हैव टू सेटिस्फाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा डेल्टा जीरो होना चाहिए इसका, ठीक है ना, ये तो होना ही चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं तो ये पेयर ऑफ लाइन बनेगा ABC माइनस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 0, ये तो पहले हो गया, ये तो होना ही होना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट का थोड़ा कोऑर्डिनेट को सोचते हैं हम लोग, x0 होने से y कितना होगा इसका, इसमें अगर तुम x0 डालोगे तो y क्या बन रहा है, by स्क्वायर प्लस y प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से कुछ ये देखो y का एक क्वाड्रेटिक बन गया, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बना और इसमें से एक रूट चाहिए हमको, ठीक है ना, वी नीड हाउ मेनी रूट्स वी नीड, इसका कितना रूट चाहिए अपने को, কেমনে একটা পয়েন্ট না মিট করে, এটাকে দুটো কোঅর্ডিনেট হবে, वी नीड ओनली वन वैल्यू इसका, क्योंकि दोनों एक ही, तो इसका एक ही वैल्यू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका d 0 होना पड़ेगा, तो b स्क्वायर क्या होगा 4f स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0, तो f स्क्वायर इक्वल टू bc, एक तो अपना बना ये वाला, कुछ तो कंक्लूजन बना, लेकिन इससे कुछ चाल नहीं भीगेगा अपना, ठीक है ना, इसमें से कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, लाइन तो यहाँ पर है, कोऑर्डिनेट को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, इफ आई शिफ्ट द कोऑर्डिनेट यहाँ पर कुछ समथिंग मान लो 0,k ले लिया, तब उसका तब वो होमोजेनियस होना चाहिए, तब उसमें क्योंकि ओरिजिन से यहाँ पर अगर ओरिजिन आ गया तब ये इक्वेशन क्या बन जाना चाहिए, होमोजेनियस, क्योंकि तब कट जाएगा, अगर यहाँ ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो इक्वेशन का स्ट्रक्चर जो बनेगा ओनली होमोजेनियस बनेगा, क्योंकि तब ओरिजिन से जाने वाला लाइन बन जाएगा। तो याद है, अगर ये एक तो है हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, एक्स के जगह में कुछ नहीं होगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स बनेगा, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, वाई माइनस के, स्मॉल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के। एक ये कर सकते हैं, ये करने के बाद जो भी लीनियर पोर्शन आएगा मतलब होमोजेनियस छोड़ के बाकी जो उसको जीरो कर देंगे, एक ये हो सकता है। दूसरा और एक मेथड था बेटा, इसको लीनियर पार्ट घुमाने के लिए, इसका टू रिमूव द लीनियर पार्ट, चेंज ऑफ एक्सिस में एक हम लोग ने पढ़े थे, एक्सिस रोटेशन, चेंज ऑफ एक्सिस, क्वाड्रेटिक से लीनियर बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, अगर अपने को लीनियर टर्म हटाना है, रामबाण बोले थे इसको, रामबाण, सिर्फ एक ही सीखना था, बाकी कुछ नहीं। ओरिजिन शिफ्टेड सो दैट द फर्स्ट, ओरिजिन को शिफ्ट वहां कराना है जाके फर्स्ट डिग्री एलिमेंट गायब हो जाए मेरा,
तो क्या था, अपने को यहाँ से मिल जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ से तुमको के मिल जाएगा, ठीक है ना। ये करने के बाद क्या होता है, वो पॉइंट निकल जाता है जिस पॉइंट में जाने से इसका ये वाला गायब हो जाएगा। अपने को पता है वो पॉइंट क्या है, 0, के है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेल एफ, समझ में आया, डेल एफ डेल एक्स को 0 और डेल एफ डेल वाई को 0, ये पार्शियल डेरिवेटिव था। इसको विद रेस्पेक्ट टू कौन सा पेज में था, ये कौन सा पेज नंबर बोलो, चेंज ऑफ एक्सिस में हम लोग किया था। इसको तुम्हें मिल जाएगा पेज नंबर 39, चैतन्य वाला अपना मटेरियल में पेज नंबर 39 में मिल जाएगा, चेंज ऑफ एक्सिस में हम लोग किया। तो इसको डेल एफ डेल एक्स किया, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने से क्या बनता है, ये 2ax, एक्स बनने से y कांस्टेंट हो जाता है 2hy और y कांस्टेंट प्लस 2g इक्वल टू 0 और ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0, ये वाला हो गया अपना। ये दूसरा वाला डेल एफ डेल वाई विथ रेस्पेक्ट टू y, 2h x विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे तो 2by, विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे तो प्लस 2f, ये हो जाना चाहिए। और आपने को पता है कि यहाँ से एक्चुअली क्या निकलता है, यहाँ से आपने को पॉइंट, इसको सॉल्व करोगे तो, इसको सॉल्व करने से ये दो इक्वेशन है, अगर तुम इस दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट द पॉइंट जहां पर जाने से वो होमोजेनियस बन जाएगा। तो आपने को पता है वहां पर तो x का कोऑर्डिनेट 0 ऑलरेडी है ही, तो लेट्स पुट x इक्वल टू 0 दोनों में, क्योंकि x इक्वल टू 0 दोनों में हो गए होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अपना हो जाएगा -g/h, और यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 डाल देंगे हम लोग, क्योंकि दोनों तो उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों लाइन जहाँ से जा रहे हैं इंटरसेक्ट। यहाँ से y बन जाएगा -h/v। अच्छा, तो यहाँ से भी एक कंडीशन बन गया अपना, क्योंकि दोनों y है, तो दोनों सेम होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तो y है इसमें, -g/h शुड बी इक्वल टू -f/b। अभी बहुत कुछ है अपने पास, ठीक है, g/h इज इक्वल टू b/f, तो अपना बन जा रहा है hf इक्वल टू bg, ये एक कंडीशन बन रहा है। अभी देखो अपने को अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, ठीक है ना, एक एक करके ऑप्शन उठा के थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। पहला ऑप्शन में अगर हम hf की जगह में bg डाल देंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन ए में थोड़ा दिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हमको दिख भी रहा है ऑप्शन ए की तरफ, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए में क्या है 2fgh, और इधर क्या है bg² प्लस ch², bg² प्लस ch²। ये fgh में f और h के जगह में हम bg डाल देते हैं, ठीक है ना, एक g पहले से है और एक bg, तो क्या बन जा रहा है 2bg²। अच्छा, एक bg² तो इधर है ही, और ch² को हम कुछ करना पड़ेगा। कहाँ है ch² के बारे में कुछ अपना इंफॉर्मेशन, कहाँ है, जितना भी इन्फो है कहाँ पर है, इधर ही है। अच्छा, पहले c को हटाते हैं, c को क्या लिख सकते हैं हम लोग, f²/b, और अभी f² की जगह में हम लोग डाल देते हैं bg² प्लस f² की जगह में डालने से क्या होगा, ये b²g²/h² इंटू b। अरे h है ना, अच्छा यहाँ तो h² पहले से था, हमने तो f की जगह में डाला, खत्म कहानी, आ गया bg² प्लस bg² इक्वल टू 2bg²। डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा, लेकिन वी कैन प्ले विद द ऑप्शंस। ऑप्शन ए में हमने कुछ सिंप्लीफाई किया तो लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों सेम हो गए। नंबर 8 क्या बोला है, if these denote a pair of lines then the point of intersection of the lines। अच्छा, दोनों लाइन कहाँ मीट कर रहे हो जानना है आपने को, ठीक है। पहले दोनों लाइन का बिहेवियर को समझते हैं हम लोग, होमोजेनियस पार्ट को लेके देखते हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसा इसका स्लोप है। अगर पैरेलल हो गया तो अपने पास एक आइडिया है, हम उसको यूज करने की कोशिश करें, ठीक है। denotes a pair of straight lines when the point of intersection। तुम ये भी कर सकते हो, ऑप्शन बिठा के देखो जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन बिठा के बहुत सेटिस्फाई कर लेगा, क्योंकि इस लाइन का भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, उस लाइन का भी पॉइंट सेटिस्फाई, तुम्हें दोनों का बीच वाला निकालना है।
अच्छा पहले मैं इसको कर लेता हूँ, इसका इसका कितना हो जाएगा, 30 से तो 11 आ जाएगा। स्लोप कितना बन रहा है इसका, डी क्या हो रहा है पहले देखो, 1 to 1 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 10, 1 to 1 माइनस 120, डी बन रहा है अपना 1, तो ग्रेटर देन 0 दो स्लोप बन जाएगा इसका, दो अलग अलग स्लोप बनेगा। जो एक काम करते हैं बेटा, इसको अभी वाला जैसे करते हैं, जैसे मान लो ये अपना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी हम लोग अगर उसका ओरिजिन को यहाँ से ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर होमोजेनियस बन जाएगा। प्रॉपर होमोजेनियस बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, कहाँ पर शिफ्ट करना, डेल एफ डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ डेल वाई इक्वल टू 0, वो करने से अपने को पता चल जाता है कि कहाँ शिफ्ट करने से होमोजेनियस बनेगा। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, डेल एफ डेल एक्स बस कर दो, वहाँ से पॉइंट मिल जाएगा, वही तुम्हारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। डी जान के कुछ फायदा नहीं हो, मैंने सोचा अगर पैरेलल होता तो कुछ बन सकता था अलग से। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करने से 6x माइनस 11y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू y करने से माइनस 11x प्लस 20y प्लस 13 इक्वल टू 0, ये बनेगा इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर उनको, या फिर ऑप्शन से देखो दोनों, इसको दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा है वो हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना है पेयर ऑफ लाइन का, क्योंकि हम अगर वहां शिफ्ट करेंगे तो ये प्रॉपर होमोजेनियस बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो डायरेक्ट आता है, या फिर तुम ऑप्शन से प्ले कर सकते हो। 3,1 भी परफेक्ट ऑप्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका डायरेक्ट ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू सॉल्व इट देन कर सकते हो इन दोनों को सॉल्व, बट नो नीड अगर ऑप्शन है, क्योंकि इसका मल्टी आंसर तो होगा नहीं, एक ही पॉइंट में सेटिस्फाई करेंगे। कौन सा है ये, 9 होगा ना। अभी क्या बोला है 9 में, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अच्छा पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, पैरेलल होने से थोड़ा इजी हो जाता है लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस गिवन बाय दिस, दोनों लाइन पैरेलल है, चलो ठीक है। क्योंकि पैरेलल है तो कभी दोनों को सॉल्व करके कभी तो आएगा नहीं, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा नहीं, तो अभी वाला जो मेथड कर रहे हैं हम लोग नहीं कर सकते। जैसे मान लो स्टेप का अगर लाइन है अपने पास, ठीक है ना, अगर स्टेप का लाइन है, अपने को पता नहीं क्या लाइन है, लेकिन हम लोग इसका स्लोप निकाल के भी फायदा नहीं होगा। फैक्टराइज हो सकता है, ये फैक्टराइज 42 से 4√2 बनेगा, फिर 4√2, 42 क्या है 7 6, 7 इंटू 3 इंटू √2 तो हो गया 7√2 माइनस 3√2, हाँ बन जाता है। तो इसको फैक्टराइज कर लो, 7 प्लस 3y होल स्क्वायर, इसको के लिख के कर सकते हो फैक्टराइज। 7√2 x प्लस 2y, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई एम राइटिंग डायरेक्ट, 3√2 x प्लस 7y, हाँ 4√2 को 7√2 माइनस 3√2 फैक्टराइज करके देख लिया। अब इसमें से एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 7y, अगर तुम कॉमन लोगे यहाँ से, और वहां से तुमको कॉमन लेना पड़ेगा 3√2, ठीक है ना। तब एक अंदर में बनेगा 7√2, ये होगा तुम्हारा आंसर। अपने को तो दो लाइन दिख ही गया, और क्या चाहिए। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन वाला आर्टिकल था। हाँ बस हो गया, निकालो। C1 माइनस C2 का अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोफिशिएंट सेम होना पड़ेगा। मैंने बोला था पैरेलल लाइन में थोड़ा ध्यान देना, इसका और इसका कोफिशिएंट कभी ये लोग 2 से मल्टीप्लाई करके दे देगा, पैरेलल लाइन है बट इट विल बी उल्टा है, देखो लगे नहीं, और से तो আমার পিছা আমার को ফলে হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর এটা আমি না শিওর, তুমি কও ফর সিউরিটি আমি কত, तो अपना ऑप्शन टी सी बना, दैट इज 2। चलो फिर हम लोग 10 वाला को देखते हैं। 10 में क्या बोला है, द कंडीशन फॉर द इक्वेशन दिस, इसको पेयर ऑफ लाइन दिखाना है, डिस्टेंस बिटवीन देम। पेयर ऑफ लाइन के लिए पैरेलल लाइन दिखाना है, तो पैरेलल लाइन के लिए हमने देखा था इसका
ये जो था इसका जो स्लोप वाला होमोजेनियस पार्ट था उसका एक ही रूट बनना पड़ेगा, इतना नहीं तो होमोजेनियस पार्ट था। अब या फिर हमको पता है स्क्वायर इक्वल टू ए भी होना चाहिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। पैरेलल लाइन के लिए क्या था, स्क्वायर इक्वल टू ए बी। व्हाट इज दिस एच, एच इज लैम्डा प्लस म्यू बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि 2h xy होता है और a होता है x का कोफिशिएंट 1 और b होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है y स्क्वायर का कोफिशिएंट लैम्डा म्यू। इसको करोगे लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 4 लैम्डा म्यू। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा म्यू इक्वल टू 0 और लैम्डा माइनस म्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू म्यू। एक कंडीशन तो अपने ये दिख गया, लैम्डा इक्वल टू म्यू, तो ये दोनों तो पहले निकल गया, ठीक है। अभी क्या चाहिए, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू म्यू बैठाने से वो क्या बनता है, डायरेक्ट देखता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन जैसा, अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो दोनों डायरेक्ट निकल जाएगा, देन वी कैन यूज दिस। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस भी बनेगा, क्योंकि इसमें ये सब है। इसमें हम स्लोप कितना है इसका, एक्चुअल स्लोप, अच्छा ठीक है, ये तो समझ गया स्लोप है। और स्लोप जो है वो पैरेलल लाइन का स्लोप कितना है वो जानने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें m डाल के देख सकते हैं हम लोग ना। तो ये लैम्डा स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा लैम्डा m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा। अच्छा, ये कुछ टाइप का अपने को दिख गया कि स्लोप क्या होगा, इस टाइप का कुछ स्लोप होगा, माइनस 1 बाई लैम्डा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेरा ये है माइनस 1 बाई लैम्डा, मतलब फॉलोइंग लाइन होगा कुछ, मान लो इस टाइप का कुछ लाइन, ठीक। अपने को चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका कोई भी एक पॉइंट उठा के ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, अच्छा एक काम करते हैं, दोनों हम यहाँ पर देखते हैं, दोनों y एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 डाल देते हैं, देन वी विल फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट्स y एक्सिस, ठीक है। अगर x को 0 कर देंगे तो क्या बन रहा है, ये तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस म्यू तो नहीं है, सब लैम्डा है, म्यू और लैम्डा तो सेम है, y इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ओरिजिन से ये जा नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा भी 0 नहीं हो सकता, तब तो स्लोप ही इन्फिनिट हो जाएगा, तो लैम्डा भी नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, वाई भी माइनस 1 में लैम्डा है, ओके बहुत बढ़िया। मतलब कुछ इस टाइप का पॉइंट्स है, लेकिन एक पॉइंट आने से कैसे होगा, इसका तो 2 पॉइंट आना चाहिए। अच्छा, तो मतलब y इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि y इक्वल टू 0 एक ऑप्शन हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक लाइन हो सकता है ओरिजिन से जा रहा है, दूसरा नहीं जाना चाहिए। तो अपना क्या हो गया, एक लाइन का स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, ये 0 माइनस 1 बाई लैम्डा, और एक लाइन अपना ओरिजिन से जा रहा है y इक्वल टू 0, बस हो गया। तो 0 0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने से हो गया। अच्छा, ये वाला लाइन का इक्वेशन भी मिल जाएगा अपना, इसका स्लोप भी अपने को पता है, स्लोप कितना माइनस 1 बाई लैम्डा, स्लोप इसका माइनस 1 बाई लैम्डा जा रहा है इस पॉइंट से,
तो स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट लगा सकते हो, फिर वो डिस्टेंस लगा दो, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस सी, ये mx प्लस सी, प्लस के जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो लैम्डा में, ठीक है। अब ये 0 0 से इसका डिस्टेंस, 0 0 से डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे कैसे, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, तो पावर ऑफ द पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट 0 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, एक कुछ ऑप्शन, इस टाइप का ऑप्शन है 1 बाई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, अच्छा नहीं, हाँ तो दोनों तो सेम ही है, कोई टेंशन नहीं है। ऑप्शन डी, सी और ए और बी तो पहले हट गया था अपना, तो ये डी हो जाए, यहाँ लैम्डा की जगह में जस्ट म्यू लगा के रखा है और कुछ नहीं, ठीक है सनी। কালকে ক্লাসটা আমি তোমার ম্যাটেরিয়াল জেরক্সে দিছি, হ্যাঁ যদি জেরক্স হয়ে যায়গা, যদি जैसे डिस्टेंस बिटवीन द लाइन डिफरेंस, अभी उसके जैसा ही दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस, अगर ये परफेक्ट पैरेलल हो जाएगा तो इसका भी हम उसके जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका डी क्या है, पैरेलल होने से क्या होगा, स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, देखते हैं इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी, 12 स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8 है क्या, अरे 1 हाँ, तो ये भी पैरेलल है, तो पैरेलल होने से सही है। हम लोग पहले स्लोप निकाल लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कहाँ पर ये काट कर रहा है, हाँ पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे हो जाएगा इसका, स्लोप हो जाएगा 18m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से तो नहीं होगा, 2 से होगा, m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 36 से 12 बनना है, प्लस करके बनना है, 6 6 सम ऑफ रूट्स इसका पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव है, डिवाइड बाय 9, तो स्लोप कितना बन रहा है इसका 2/3, और x को 0 कर देते हैं हम लोग, वहाँ से ये पॉइंट मिल जाएगा, x को 0 कर दिया तो क्या हो गया, ये 0 तो 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 5 इक्वल टू 0, इस टाइप का कुछ बना, ठीक है। अभी 90 से तुमको 9 बनाना है माइनस करके, 6 15 90, 15 माइनस 6, तो y हो जाएगा 15 और 6, सम ऑफ रूट्स इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज आल्सो नेगेटिव, सम ऑफ रूट्स इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज आल्सो नेगेटिव, डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 18, तो दो ये अभी 0 से नहीं जा रहा है, एक क्या बन रहा है -3 बाई, हाँ ये तो ड्राइंग भी सही हो गया, m भी पॉजिटिव है, और 100 एकदम 3 दिया काटसी 5 3 दिया काटसी 6 এটা 1/3 एकदम परफेक्ट है। ये हो गया अपना 0,1/3 और ये हो गया 0,-5/6, ठीक है। अभी किसी का भी एक लाइन बना के तुम इस पॉइंट से यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो इसका लाइन निकाल लो, इसका लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx, n कितना है 2/3x और स्लोप कितना है -5/6, तो 6y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब तुम एलसीएम करोगे 6y माइनस 4, अब ये 0,3 से इसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला देगी, इसको और इसका बीच में डिस्टेंस निकालो, d इक्वल पावर ऑफ पॉइंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्क्वायर, जल्दी निकालो, निकाल के बोलो। So if you do this one, it is coming ভুল কয়টা আবার অ্যানসার হলো এই কোশ্চেন, কোনটা আবার কিতাব মিলবে, কই মিলছে, তুমি যে অলরেডি 3 7/2 অপশন ডি, কতটা করো তুমি, 8 ঘন্টা ঘুমাও, 10 ঘন্টা উঠো, तब इसे the condition that one of the statement given by this may coincide with the one given by this, मतलब दोनों लाइन के बीच में एक लाइन कॉमन होना चाहिए,
ঠিক আছে না, তার মানে যে কোনো একটা স্লোপ সেম হতে লাগবে। इधर एक করার লাগে অনেকটি মেথড আছে, বাট আই উইল ইউজ दोनों को स्लोप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉमन रूट से একটা মেথড ইউজ করে নিলাম আমরা কোয়াড্রেটিक অথবা তুমি অঙ্ক কোশ্চেন আমি তোমাকে ছিল तो क्वेश्चन आना क्वाड्रेटिक, ये पहला इक्वेशन से m का इक्वेशन बनेगा और दूसरा वाला से क्या होगा b डैश m स्क्वायर और सब डैश हुई बाकी सब सेम ना। देखो अभी इसमें दो रूट है m1 m2 और इसमें भी दो रूट है, मान लो एक m2 एक m3, एक कॉमन होना चाहिए दोनों के बीच में, ঠিক আছে না? তো কমন রুটটা বলে দুটোটা ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করব। তো দুটোটা ইকুয়েশনের এটিতে কেমনে সলভ করি ক্লাস 10 এ মনে আসলো নি? ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন মেথড পড়ছিলেন এটা এমনি করে? হ্যাঁ কোশ্চেন না, এটা সিলেবাসে আসবে না, বাদ দিয়ে দিছো নাকি? তা বই বাদ দিয়ে দিছে, সিলেবাসে নাই যে বাদ দিয়ে দিছে, এটা বাদ দিয়ে দিছে, অন্য লোকজনই হন দরবার লাগবে নি, আমি তো করিয়ে দিয়েছি, আমি এটা করাই দিয়েছিলাম কারণ লাগবো জানি আমি এটা, ঠিক নেই? তাহলে কি করি আমরা এটারে বন্ধ করি, এমনি করি। হ্যাঁ তাহলে কি দেখো 2h a डैश माइनस 2h डैश a और माइनस m में क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, এটা বন্ধ হয়ে যায়গা, ঠিক নেই? তো তখন আবার এটাতে এটা b a डैश b डैश a বুঝা শুনি উপরেতে নামবো কিন্তু সব সময়, ঠিক নেই? এরপর এটার লাগে আবার উপরেতে নামবো 2bh डैश माइनस 2b डैश h। এবার আমরা করি কি তা এই দুইটাতে m বার করবা, যদি সেম হতে লাগে তাহলে তিনটা এই দুইটাতে একটা m বার করবা, আবার এটাতে আমরা এক দুটোটা m সেম হতে লাগবে, দুটোতে সেম m যদি আয় তাহলে দে m কমন হচ্ছে। তো এখানতে যদি m বার করো প্রথমটাতে m বার করলে কি তা আয় 2 কমন নিয়ে নিলাম a dash h minus ah dash divided by ab dash minus a dash b আর এটাতে m কত হয়ে যাবে গাইলে ab dash minus a dash b divided by 2 কমন ले लो bh dash minus b dash h। আর দুটোটা ইকুয়াল করে দাও, দুটোটা ইকুয়াল করে দাও কোন অপশনটা है, একটা তো এটা হোল স্কয়ার হবে ab dash minus a dash b होल स्क्वायर, ab dash minus a dash b होल स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक 4 into a dash h minus a h dash b h h dash মানে ऑप्शन ए, ऑप्शन बी थे 4 नहीं ना, इन्हें 4 मिसिंग है इसलिए बी नहीं है। समझ में आया? कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी विल बी यूजिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉमन रूट्स, ठीक है? नेक्स्ट डे वी विल सी क्या हम कोऑर्डिनेट को खत्म करेंगे, जेरेक्स आने दो मटेरियल का, ठीक है?